So if I ask you the question, Fiza Nazir, what is difference between memory mapped IO and isolated IO? Can you tell us? Shabash. मेमोरी मैप हम कॉमन बस का यूज करते हैं. Very good. एंड आइसोलेटेड आईओ में एड्रेस बस और डेटा बस जो है वो कॉमन यूज करते हैं और कंट्रोल बस सेपरेट यूज करते हैं. MashaAllah, that's so nice. Yani ki, that means you are getting, that's what I'm saying is that is getting percolated down there. That is a chuck. It was a cross check to me that whether I was teaching right or not. So it seems so. Thank you very much, Fiza Nazir. So nice of you. So we're gonna memory mapped IO. Okay. So where we have a device and memory share an address space, the whole address space, because now जो आपकी bits हैं, जो आपका एड्रेसिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए आपके पास 3 बिट्स आपने रखे एड्रेस करने के लिए, सो यू कैन एड्रेस 000 एरर हैज कम अप 001 010 011 100 101 110 111. This is the naming scheme I can have. So I will name this as somebody as, say this is my memory unit, some memory module, next memory module, next memory module, and so forth. Then I got, this is my one of the input devices, this is one of the input devices. So if I have memory mapped IO, because I see everything as an, I have a control line, single control line, single address line, single for each and every one. So that means this addressing for memory and for addressing for IO devices are shared. So I am sharing the address space. I am sharing the address space. But I have now the full 16-bit bus, if it's a very old system where we have 16-bit bus, or if we have 32-bit bus or whatever, the whole 32 bits can be used for addressing, and it gives us a huge address. So we have a lot of addressing. We can do that. And same way for the instructions and all. We can put up the large instructions. We have a large set of instructions to have, because we have now everything for everything. Now whatever we have, the bus, the control, the address, the data, it is for everything. Okay. ये तो हो गया, isolate ये तो हो गया, पढ़ेंगे. So if you see difference between, let us make it cement this here. Okay, let us cement this here and get this concept 100% in our brains, that isolated IO versus memory mapped IO. Memory and IO has separate address bus. Okay, we have, there is some question. Tufakul is asking some question. Please open, you can open up your mic and just. So ये कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कोई कोड वगैरह यूज करते हैं? Communicate मतलब between the CPU and the peripherals? Yes sir. Yes, that's what I'm saying you. We have 3 techniques for that, how they do this communication. Okay, we'll do them maybe tomorrow. Okay, that is in the slide. That's what I was telling you, like it is programmed IO, or is it interrupt driven IO, or is it the direct memory access? There are 3 ways to do that actually. Okay, so to see who is trying to send, okay, this communication, whose status is ready and who wanna send, because we have to figure out now, because अगर हमारे पास 10-15 input output devices हैं, who firstly is asking for CPU time. Okay, that is the communication ना. जैसे आप सारे बंदे हो, ये input output है, मैं प्रोसेसर हूँ, आप में से कौन मेरे साथ बात करना चाह रहा है, कुछ मतलब किसी को क्वेश्चन है, होगा ना इनपुट आउटपुट कुछ, ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से इनपुट आउटपुट आ रहा है, किसी का क्वेश्चन आ रहा है. सो कौन बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, कि कौन मेरे साथ कम्युनिकेशन बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, वो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा. दैट वी विल डू इंशाल्लाह टुमारो. दैट इज योर द 3 थिंग्स. ओके, वी विल डू इट टुमारो इंशाल्लाह. सो अभी हम आइसोलेटेड आईओ वर्सेस मेमोरी मैप्ड आईओ कर रहे हैं. तो मेमोरी एंड आईओ हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस. They have separate address space, not the address bus. Address bus is common. Okay, but control is different. Both have same, but in memory mapped same address space, because we see both as the same. Okay, all address can be used by the memory. Okay, due to the addition of IO, addressable memory becomes less for memory.
what is saying, due to addition of IO, I'm not getting what is this written here, you just check it out. Due to addition of IO, addressable memory becomes less for memory. अच्छा ठीक ठीक, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर क्योंकि आपने जो एड्रेसिंग जो आपका ये जो कंट्रोल लाइंस थी, ओके, क्योंकि आपने एड्रेस स्पेस शेयर किया हुआ है किसके साथ, आईओ के साथ, सो डेफिनेटली अब आईओ भी टेक पार्ट ले रहा है एड्रेस स्पेस में, ठीक है ना। सो दैट मींस आपकी मेमोरी थोड़ी सी कम होने वाली है एज पर दिस, क्योंकि इसमें एड्रेस स्पेस डिफरेंट था, ठीक है। द एड्रेस स्पेस वाज डिफरेंट इन केस ऑफ योर आइसोलेटेड आईओ, सो दैट मींस द मेमोरी टेक्स द होल एड्रेस स्पेस। सो इससे ज्यादा मेमोरी सपोर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शेयर हो रही है ना, एड्रेस स्पेस इज शेयरेबल, it is shared with the IO and this, that means the full memory will not be accessed, but we have a huge number of bits so that we can have a huge number of memory and huge IOs, so this is not an issue actually. So we have separate instruction control, that is read and write operation, इसके अलग होने वाले हैं और इसको सेम ही होने वाले हैं, ठीक है ना। so इसमें जब क्योंकि इसकी एड्रेसिंग जो मैकेनिज्म है जो कि हमारा हम एज ए मेमोरी नहीं देखते सबको, ठीक है, जो आइसोलेटेड आईओ है हम सबको एज ए मेमोरी नहीं देखते हैं, आईओ को डिवाइस को अलग देखते हैं, मेमोरी को अलग देखते हैं। तो इस सूरत में हम कहते हैं इनको कि इसको मेमोरी कहेंगे और इनको पोर्ट्स कहेंगे, ठीक है। द पोर्ट्स मींस द एड्रेसिंग ऑफ दोज पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें सेपरेट बस है तो इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है क्योंकि सेपरेट बस नहीं है। तो लेकिन इसमें that's what's called as a trade off, we have to see the trade off, ठीक है ना। जैसे एसोसिएटिव मेमोरी फास्ट है लेकिन हम वो नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो साथ में कॉस्टली बन जाती है, क्योंकि इसका सर्किटरी बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें वो कॉस्टली हो जाता है। सो हालांकि वो फास्ट है बट वी विल नॉट बी यूजिंग इट, क्योंकि ऐसा हो गया कि आपको जाना है कहीं पे, ठीक है, हम कहेंगे एरोप्लेन में जाओ सबसे फास्ट है, लेकिन अफोर्ड कौन करेगा भाई, ठीक है ना। ठीक है, मैं चॉपर से जाऊंगा, चॉपर विल बी इट विल बी वेरी फास्ट एंड ऑल, बट एज अ कॉमन गाय, एज अ कॉमन पीपल, कैन वी अफोर्ड टू हैव अ चॉपर, पहले वो क्वेश्चन बनता है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन फास्ट है, बेटर कौन है, ये ट्रेड ऑफ्स हैं, यानी कि सारे ट्रेड ऑफ में बेस्ट सिनेरियो क्या है, ठीक है ना। आपके पास पैसे नहीं, आप चॉपर ही नहीं खरीद सकते, तो इज इट अ सोल्यूशन, इट इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल, बिकॉज आपके पास वो पैसे है ही नहीं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं बनता कि फास्टेस्ट कैसे पहुंचोगे आप वहां पे, ठीक है, यूजिंग विच व्हीकल, बल्कि ये है कि आपको सारे जो कंडीशंस है, कॉन्स्ट्रेंट्स है, उनको मिला के ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है, यानी कि आपके पैसे, आपका रिस्क फैक्टर, आपके वहां पे जो रास्ता है वो कैसा है, एंड सारे मिला के बेस्ट आपको देखना है कि मैं कैसे जाऊंगा फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन, ठीक है, समझ आ रही है। सो हर सूरत में कभी कभार क्या होता है कि अगर यहां से दिल्ली जाना है आपको, ठीक है, आपको के एयरलाइन टिकट्स, लो फेयर एयरलाइन है, उसमें बहुत सस्ते हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वहां, लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना का जंग चल रहा है और उन्होंने मिसाइल्स रखे हुए हैं कि एरोप्लेन को खतरा है उड़ाने का। अब अगर वो आपको फ्री में भी देंगे तो इज इट बेस्ट टू गो थ्रू द एरोप्लेन इवन दो इट इज फास्ट? नो। Why? Because there's a risk factor. So we have these things called trade-offs. So इसमें जो आइसोलेट आईओ में है it is efficient because इसमें separate है buses and so on. So लेकिन cost बढ़ जाएगा, large size हो जाएगा और हम इसके पीछे हमेशा होते हैं. And we say that smaller is the faster. इसमें complexity बढ़ जाएगी क्योंकि separate logic करना पड़ेगा. जो IO devices के साथ logic है वो अलग है, जो memory के साथ ये logic है वो अलग है. तो इसमें सिंपल लॉजिक है बिकॉज सबको एज ए मेमोरी देख रहा है सीपीयू, इसको किसी के साथ भी इंटरेक्ट करना है, इट सीज देम एज ए मेमोरी। सो एक ही लॉजिक से सबको पकड़ रहा है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। सो दैट इज व्हाई वी से मेमोरी मैप्ड आईओ इज गोइंग टू बी द थिंग टू डू। ये तो सेम ही है। सो ये Utufa I guess asked the question. This is the answer of the Utufa's question, that is programmed, interrupt driven and direct memory access. Okay, we will read that tomorrow, but I just give you a simple here idea of it, जो कि मैंने already दिया हुआ है, मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा आज आपको कि प्रोग्राम्ड और इंटरप्ट ड्रिवन और डायरेक्ट मेमोरी में क्या होता है। कि मतलब तो वो पूछ रही थी कि भाई ये पेरिफेरल डिवाइस है या मेमोरी है,
ये मेमोरी यूनिट है, ये आईओ डिवाइस है, ये दूसरा आईओ डिवाइस है, ये तीसरा आईओ डिवाइस है, एंड दे वांट टू, इनको कनेक्शन बनाना है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सीपीयू के साथ। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा कम्युनिकेशन बनाना चाह रहा है, किसको डेटा ट्रांसफर करना है, किसको राइट करना है, किसी को कुछ करना है, ठीक है ना। माउस अपना ये करना चाहता है, डबल क्लिक राइट क्लिक करना चाहता है, तो माउस है ना, ये करना, राइट क्लिक करना है तो इसको कुछ करना है यहाँ पे, उससे अगर मैं क्लिक करूंगा उस पर कुछ होना चाहिए। So that means it's trying to communicate, and the CPU is the guy who will do the job processing, ठीक है ना। तो अब कैसे पता चलेगा कि माउस इस वक्त नहीं कर रहा है, अभी ये पेन कर रहा है, ये भी माउस का काम कर रहा है ना, दिस पेन इज आल्सो मूविंग लाइक ए माउस, एंड इट आल्सो हैज अ राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक एंड ऑल दैट ऑन इट, ठीक है ना। तो और ये लिख भी रहा है एंड सो ऑन। और अगर मैंने पेन ड्राइव लगा दी, अगर मैंने कुछ और कैमरा लगा दिया इसमें, अभी मैं अपना फोन अटैच करूंगा इसके साथ, okay, so question is ki how we make it sure ki who want to make the communication and what they want to do, not only who want to make the communication but also what they want to do they want to write something, do they want to read something, they put some instruction in it, do they trigger some event, like these mouses, they trigger events, you click, what will happen on that click, that's called event, okay. So how we know who is doing what? So इसके 3 तरीके हमारे पास, बेस्ट तो ये है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये आ गया सीधे, उसके बाद डीएमए के बाद इनपुट प्रोसेसर एक्चुअली इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डीएमए। सो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि सीपीयू एक एक करके पोलिंग करता है, क्या करता है वो एक एक करके जाता है डिवाइसेस के पास, सबको, भाई तेरे को तो नहीं करना, 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 पूछता रहता है, इज गोइंग इन अ साइकिल टू द एवरीबॉडी ऑल द टाइम एंड आस्किंग किसको करना है, जो बोलेगा हाँ मेरे को करना है तो मैं उसके बाद हाँ चल बता क्या करना है, लाइक दैट, ठीक है। अब सीपीयू इज वेरी फास्ट एंड इट डज इट वेरी क्विकली, सो इट डजंट गेट lag it down and all, but it tied up the CPU. Is it a good idea, Mumin? What do you say? Is it a good idea to tie up the CPU with the input output devices, asking them कि भाई तेरे को करना है कि नहीं करना है इनपुट? आपको समझ आई? ये ऐसा हो गया कि मेरे मोहल्ले में चंदा करना है, मस्जिद जमा करनी है, और मैं हर घर में जा रहा हूँ भाई, नॉक करके, वो देना है आपको, वो कह रहा है हाँ देना है, अच्छा दे दो, आपको देना है नहीं देना है, आपको देना है नहीं देना है, आपको देना है, और मैं साइकिल कर रहा हूँ। Is it a good idea or should I do different? What do you say? Absolutely. Otuba is saying it's a long process and can take, it definitely wastes time. It definitely wastes time because it's tied up. CPU जा रहा है IO devices के पास, आपको कुछ करना है नहीं करना है. It's not a good idea, right? So, but if we do like that, it's called a programmed IO. And then what is a better idea? Interrupt. What is the interrupt room? What is the interrupt? Interrupt means like I am teaching something, I'm doing some job, and यहाँ से एक माइक खुलती है या हैंड रेज होता है या कॉल आती है या कुछ होता है कि इंटरप्ट मींस मैं अपना काम छोड़ के उस डिवाइस के पास जाता हूँ, बोलता हूँ हाँ जी बोलिए क्या मसला है। अभी प्रोफेसर वाहिद साहब का कॉल आ गई तो मैंने अपना काम वीडियो को पॉज किया, आपको पॉज किया, आई रिसीव्ड द कॉल, हाँ जी बोलिए। सो व्हाट आई डिड, उसने इंटरप्ट मारा और मैंने इंटरप्ट को एक्नॉलेज करके उस प्रोसेस, उस जॉब, उस इनपुट आउटपुट को प्रोसेस किया। दिस इज हाउ सीपीयू वर्क्स कि जिस बंदे को इनपुट आउट करना है वो इंटरप्ट मारे। सो देयर विल बी इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स कि जब इंटरप्ट आएगा वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, अ लो लेवल सॉफ्टवेयर व्हिच विल रन टू एक्नॉलेज दैट एंड टू वर्क ऑन दैट एंड सी व्हाट दे वांट टू डू एंड देन फिर उसका जो चाहे राइट करना है, रीड करना है या इवेंट करना है उसके ऊपर वो होगा, ठीक है ना। और तीसरा तरीका ये है कि मैं एज अ सीपीयू कोई इनपुट आउटपुट के मामले में दखल नहीं दूंगा, ठीक है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेसेस एंड आई एम अ वेरी फास्ट गाय, आई डोंट वांट टू स्टक माई सेल्फ इनटू इट। लेट वी हैव अ सेपरेट मॉड्यूल इटसेल्फ एज अ डीएमए व्हिच हैज नाउ इंटेलिजेंस इन इट, बिकॉज जो पहले जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स थे they didn't have the intelligence to do something of their own. The CPU tell them to do this, okay, they do that for us,
for the CPU, but the CPU was the boss telling them each and every time what to do and what not to do, stop doing, do this and all that. But the DMA now is kind of a guy that I have like पहले ये था कि जैसे प्रिंसिपल है, ऑफिस में प्रिंसिपल बैठा है तो सारे स्टूडेंट उनके साथ मिलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल का अपना काम है, बहुत सारे काम करने उसको। अब उसको काजिम आ रहा है कि सर ये मसला है, यहाँ से साजिद आ रहा है, वो मसला है, तो हाँ जी बोलिए। प्रिंसिपल बोल रहा है कि वो तो लग गया ना आपके साथ, ठीक है, वो तो लग गया ना आपके साथ इनपुट आउटपुट के साथ, तो अपना काम उसको बैठ रहा है। अब हमने कहा कि गेट के ऊपर सेक्रेटरी रखो, any input output talk to the secretary, and the secretary has the authority to make decisions, to do things, ठीक है ना। ये पैसिव सेक्रेटरी नहीं है। एक हो गया पियोन जो हमारे प्रिंसिपल के बाहर है, दैट्स अ पियोन, he has no authority, he know nothing, he is just an interrupt, that's the interrupter mechanism। कोई बंदा आता है वो उसको बोलता है कि वो मेरे को काम है, वो जाता है प्रिंसिपल को एक्नॉलेज करता है हाँ, या उसको बोलता है नहीं ठहरो अभी, ठीक है ना। प्रोग्राम्ड आईओ में ऐसा हो गया कि प्रिंसिपल खुद ही घूम रहा है कॉलेज में, एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं बोलो क्या बोलना है, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल खुद एक स्टूडेंट के पास जा रहा है, बोल भाई तेरे को बोलना है कुछ नहीं, तो आगे चलता है। तो ऐसा नहीं होगा, वो तो गलत बात है, क्योंकि वो तो टाई अप हो जाएगा ना, तो ऑफिस में तो वो भी बैठेगा ही नहीं कभी, ठीक है। और अगर ऐसा स्टूडेंट वो उसको मिल गया, वो बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा अभी, बाद में बोलूंगा। सो तो इंटरप्ट ड्रिल में क्या होता है कि प्रिंसिपल बैठा है अपने ऑफिस में, वो नहीं जा रहा है स्टूडेंट के पास, तो इनपुट आउटपुट जिसको कोई जो काम है वो आ रहा है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के पास, वो आपका पियोन है, और पियोन इंटरप्ट मारता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल उसको एक्नॉलेज करता है, या उसको बोलता है वेट करो, या उसको बोलता है क्या करो, अपना काम कर रहा है, उसको वो अपना काम नहीं छोड़ रहा अभी, वो उसको बोल रहा है वेट, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसने फिनिश किया, अब बोलता है हाँ आ जाओ। तीसरा हो गया कि हमने सेक्रेटरी रख दिया, ठीक है। अब सेक्रेटरी रख दिया हमने प्रिंसिपल सर के साथ। अब कोई इनपुट आउटपुट आता है, वो डीएमए को होता है, डीएमए खुद उसके ऊपर काम करता है। वो काजिम बोलता है कि हमारे क्लास के अंदर डिसिप्लिन की पंगे हैं, अच्छा सर हमें लाइटिंग के मसले हैं, हमें बोर्ड चाहिए वगैरह, और हमें स्मार्ट बोर्ड्स चाहिए, और हम सबको एक लैपटॉप दे दो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो जो हमारा सेक्रेटरी है, इट इज टेकिंग दोज क्वेश्चंस एंड इट इज अ डिसीजन पावर, ठीक है ना। हम दूसरे क्लास में शिफ्ट होना चाहते हैं, जो सेक्रेटरी है वो खुद करता है, हाँ चलो जाओ आप उस क्लास में, चलो ठीक है। लेकिन बाद में वो जब काम करता है, वो सीपीयू को बताता है, प्रिंसिपल को बताता है सर मैंने ये कर दिया ये काम, तो वो कहता है वेरी गुड, डू यू अंडरस्टैंड। सो जो सारा जो काम था करने का था, वो सेक्रेटरी ने ले लिया, इनपुट आउटपुट का एक डिफरेंट मॉड्यूल ने ले लिया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, राइट। सो वी हैव वन डायग्राम हियर, आई गेस आफ्टर this is the diagram, okay। I will stop here today, but this diagram is self-explanatory what is going on in this. The CPU is stuck in this loop, as you could see, all the time checking for who the guy is doing the input output. Here CPU goes to do something else, while interrupt comes he comes back, interrupt comes he comes back to service that interrupt, okay। Here CPU is gone, it's the DMA who is doing all the things. Then when the DMA is done, he tells CPU, hey buddy, I have done it, and CPU say okay good job, right, and this seems to be better, this seems to be better, okay, okay। And then we have input output processor, dedicated processors which does the input output processing also, that is advanced level of DMA then, okay, okay। Then I will stop here today. Anybody having questions, welcome. Anybody having any question? No sir. Okay, I have a question. Are you understanding the way I am teaching? This is important for actually I'm not even a dedicated teacher basically, okay, I'm not your because I have been, you know, actually my job is to teach MCAs, not yours, but as a teacher one should know that whether whatever you are teaching, the language you are talking and all, is it going through or not? Are you getting the concepts I'm teaching clearly, or you get them shabby, or no, there still remains something like some doubts and all the time? Yes.
whenever we teach, I'm teaching a concept, am I able to get Yes, you sir. understand those things or not? This is what I want to know. Yes, sir. So if you are somehow, somebody is not getting the concepts clearly, एक तो है कि आप काम नहीं कर रहे हो, फिर तो उससे तो कुछ होगा नहीं, उस बंदे को तो कुछ समझ आएगा नहीं, तो पता ही है. बट एक होता है कि कभी कभार लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, गिविंग मोर एग्जांपल्स, or sometimes the classes become, you know, dull when you talk about more on the concepts and students are bogged down because of already reading a lot of things. So we have to add up more, maybe some jokes in it and something like that, so that the smiles come up and dil laga rahega padhne ke sath. So but these things happen when you you talk with me, you understand, when it's not a passive class, when it's an active class and students are interacting. Okay, there should be sense of humor. The sense of humor is very important for every lecture, that it should not be dull, it should have some kind of smiles going on, okay? So you should be able to talk and you should convey your message to me, either personal message or something like that, so that these classes, even though there are few classes now to go, they become very effective and they become, you know, some kind of, you know, best classes. I could say that this is the best class. This is I, as a perfection to nahi aa sakti, but I love to have a best class going. Okay, my every class I want it to be the best class. This is what I work for. I really want to, now I have a lot of passion for it, to make my classes the best class, but it will not happen if you don't talk. Okay, as a teacher it shouldn't be like that. I don't care कि आप क्या बोल रहे हो, मैं अपना lecture दूंगा. Okay, it's not like that. It's a two-way mechanism. ठीक है ना? So hopefully you all guys will come up and talk more. Inshallah ta'ala, see you next time. कल तो वैसे off है ना, कल छुट्टी है. Okay, Allah Hafiz. Allah.